start reading. Sure. Have you finished your breakfast, children? Called mother from the kitchen. Yes, mother, answered Najma and Ajmal together. They hurriedly gulped down their tea and went to the kitchen. Get ready, both of you, while I do the washing up. Are we going to visit uncle or uncle? Our uncle asked Najma. No, we go shopping today, said mother. Shopping? Said Ajmal. We have never gone shopping before, mother. Yes, I know that is because your father always does the shopping, but he is not at home. He is on tour and it is the beginning of the month. We have run out the grocery and provisions, so we shall have to do the shopping ourselves. Let's hurry then and get ready. It is going to be fun, said Ajmal in excitement. I am sure we will all enjoy it, added mother. They stood on the roadside waiting for a taxi, all three of the carrying shopping bag. Mother had a taxi, they sat in it. Market, please, said the mother to the driver and start the metro. The metro is out of order. 25 rupees for the market, said the driver. God heavens, 25 rupees for the market, exclaimed mother. It is hardly 2 kilometers from here. I will pay you 15 rupees or you drive us to traffic sentry there. Okay. ठीक है, so यहाँ पे जो है conversation चल रही है mother and her two children, that is Najma and Ajmal. ठीक है, अब उनकी मदर जो है वो उन्हें कहती हैं कि आज जो है हम लोग शॉपिंग पे जाएंगे and these two kids have never been to shopping before. कभी इससे पहले शॉपिंग पे गए नहीं है, तो वो अपनी अम्मी से पूछते हैं कि हम तो इससे पहले कभी शॉपिंग पे गए नहीं है, तो आप हमें आज के लेके जा रही हैं। तो उन्होंने क्या रीजन दिया कि तुम्हारे फादर जो है वो टूर पे है, मतलब आउट ऑफ सिटी है, तो शॉपिंग हमें खुद ही करनी पड़ेगी क्योंकि महीने का स्टार्ट है। सबके घरों में महीने के या तो एंड में शॉपिंग हो रही होती है, महीने के स्टार्टिंग में शॉपिंग हो रही होती है, क्योंकि घर का सामान लाना होता है, ग्रोसरीज खत्म होते हैं। ग्रोसरीज आर लाइक वेजिटेबल्स और फ्रूट्स और जो घरेलू सामान से खाने में यूज होता है। ठीक है, प्रोविजंस, उसके प्रोविजंस का जो है उसमें व्हीट आ जाता है, गंदम आ जाता है, आटा आ जाता है, ये सारी चीजें। ठीक है, तो वो चीजें लेने के लिए जाना है और ये बच्चे बड़े एक्साइटेड है कि दे विल गो टू द मार्केट। अब मदर जो है वो बाहर निकलते हैं, तैयार होकर सब लोग जाते हैं, दे स्टॉप अ टैक्सी। टैक्सी वाला कहता है कि मीटर खराब है, मतलब जिसपे मीटर पे शो होते हैं नंबर, ये कितना किलोमीटर पे कितना आपका चार्जेस बने, वो खराब है, लेकिन 25 रुपए में दूंगा मार्केट तक जाने के। तो अम्मियों की आदत होती है बार्गेनिंग करने की, तो यहाँ पे भी इनकी अम्मी ने बार्गेनिंग की कि नहीं, मैं आपको 15 रुपए दूंगी, आप मुझे वहां के ट्रैफिक सेंट्री पे, ट्रैफिक सेंट्री जो है मतलब जो लाइक क्या कहना चाहिए, ट्रैफिक लाइट्स नहीं होती, उधर के करीब आप मुझे उतार दीजिएगा। तो उन्होंने क्या कहा, ऑल राइट बेगम साहिबा, और ड्राइवर 15 रुपए का मान गया। आगे बढ़ो। Let's go to the mutton market first, said mother as they got down the taxi. Look, Najma, how big those goats are, said Ajmal, pointing to the slaughtered animals hanging in a butcher shop. They are not goats, Ajmal, they are cows and calves, corrected their mother. This is the beef market. What is the difference between beef and mutton? Beef is the meat of cows, while mutton is the that of goats and sheep, said mother, stopping in front of a mutton shop. How much for a kilo? Mother asked the butcher. 120 rupees, madam. 120 rupees? No, it is 110 rupees according to price list here, said mother, pointing at the list. Yes, madam, 110 rupees for the ordinary meat, but if you want special, mother interrupted him and said, I will have the special meat at 110 rupees a kilo. Yes, madam, as you wish. How much? Said the butcher. 1 kilo of leg, 1 kilo minced meat, answered mother. The butcher did his job and said, everything has been packed for you, madam. Here you are.
Mother made the payment, put the meat in the bag and said, now let's buy some vegetables. So they went to the vegetable and fruit market. Please give me a kilo of tomatoes, said mother. You, ma'am, anything else? I asked the shopkeeper. Yes, ma'am. Yes, 5 kilos of onion, 2 kilos of potatoes, 1 kilos each of cabbage, cauliflowers, cauliflower, turnips, green pea, and 2 kilo of spinach and 5 kilo of carrots. How much for the bananas? Asked mother. 20 rupees for 10, said the fruit seller. And apple? 24 rupees for a kilo. Give me 10 bananas and 1 kilo of apples. Ajmal, put them in your basket and then we go to the grocers. ओके अब यहाँ पे जो है जब वो लोग मार्केट पहुंच गए तो सबसे पहले वो कहाँ गए, मीट मार्केट। अब जब कभी आप लोग मार्केट जाओ तो वहां देखा होगा कि हर चीज के अलग अलग सेक्शन बने हुए होते हैं। गोश्त का सेक्शन अलग होता है, सब्जियों का अलग होता है, उसके बाद ये आटे वगैरह के चावलों का सेक्शन अलग होता है, ठीक है। तो सबसे पहले वो मीट मार्केट जाते हैं, वहां जाके नजमा जो है वो अजमल को बोलती है कि देखो कितनी बड़ी बड़ी बकरियां लटकी हुई हैं यहाँ पे। तो उनकी अम्मी कहती है बकरियां नहीं है, ये गाय हैं। तो वो कहते हैं कि अच्छा गाय, और मतलब वो कहती है हम बीफ मार्केट में। अब बच्चों को नहीं पता होता कि बीफ और मटन के अंदर क्या फर्क है। तो वो पूछते हैं, तो वो कहती हैं कि बीफ जो होता है वो गाय के गोश्त को कहते हैं, और मटन जो होता है वो बकरी या बकरे के गोश्त को कहते हैं, ठीक है। तो अब उसके बाद वो शॉपकीपर से पूछती है, अच्छा एक और चीज कि जो आदमी मीट की दुकान पे बैठा हुआ होता है, हम तो उसे नॉर्मली कसाई बोल रहे होते हैं, बट ही इज नॉट कसाई इन इंग्लिश, उसको हम कहते हैं बुचर। मीट की शॉप पे बैठने वाले को हम बुचर कहते हैं, ठीक है। उस पे वो पूछती हैं कि हाउ मच फॉर अ किलो, तो वो कितने बताता है, 120 रुपीज। फिर वो कहती हैं कि नहीं, आपकी लिस्ट में तो 110 रुपये लिखा हुआ है। तो वो कहता है कि जी 110 रुपये किसके, फॉर ऑर्डिनरी मीट, ठीक है, बट इफ यू वांट स्पेशल, अगर वो उनका ये था कि अगर आपको स्पेशल मीट चाहिए तो उसमें 10 रुपये और बढ़ जाएंगे, 120 हो जाएंगे। तो उनकी मदर ने बार्गेनिंग करके बोला कि नहीं, मैं आपसे स्पेशल मीट ही लूंगी 110 रुपये में, ठीक है। और उसके बाद जो है वो कहते हैं किस तरीके का आपको मीट चाहिए। तो वो कहते हैं मुझे 1 किलो लेग चाहिए, मतलब गाय की टांग वाला गोश्त, और 1 किलो जो है वो मिंस्ड मीट चाहिए। मिंस्ड मीट कहते हैं कीमे को, ठीक है, कीमे वाला गोश्त चाहिए। उसके बाद जो है बिचर अपना काम करने के बाद उन्हें कहता है, सामान वगैरह दे देता है, और उसके बाद वो लोग जाते हैं वेजिटेबल्स की साइड पे। वहां जाके वो कहती हैं कि मुझे टमाटर लेने 1 किलो। उसके बाद वो शॉपकीपर पूछता है अच्छा इसके अलावा और कुछ। नॉर्मली अगर आप किसी सब्जी वाले से कोई एक सामान लो तो वो आपसे पूछता है क्या इसके अलावा और कुछ चाहिए। तो वो कहती हैं जी 5 किलोज ऑफ अनियंस, प्याज, 2 किलोज ऑफ पोटैटोज, 1 किलो ईच ऑफ कैबेज, कैबेज कहते हैं गोभी को, कॉलीफ्लावर, टर्निप्स, टर्निप्स कहते हैं शलजम को, ठीक है, ग्रीन पीस, एंड 2 किलोज ऑफ स्पिनच, एंड 5 किलोज ऑफ कैरेट। हाउ मच फॉर द बनानास, अच्छा बनानास खरीदने का तरीका अलग होता है, वो दर्जनों के हिसाब से देते हैं, या तो एक एक केले के हिसाब से, 2 केले के हिसाब से, इस तरीके से उनके पैसे होते हैं। तो वो क्या कहता है, 20 रुपीज फॉर 10, 20 रुपए 10 किलो के लिए। फिर उससे वो पूछती हैं कि एप्पल्स का, एप्पल्स जो है वो किलो के अंदर बेचे जाते हैं, तो 20 रुपीज अ किलो, 24 रुपीज अ किलो, ठीक है। तो वो कितने लेती हैं, गिव मी 10 बनानास एंड 1 किलो ऑफ एप्पल। और फिर अजमल को कहती हैं कि अपने बैग में डालो, और हम आगे जा रहे हैं ग्रोसरीज की साइड पे। रीड। Please give me 1 kilo of salt, a quarter of red chilies, a quarter of black pepper, and other species, 2 cartons of soap flakes, the 3 bars of washing soap, 4 cakes of toilet soap, a kilo bag of porridge, a jar of honey, 1 bottle each of tomato sauce and vinegar, and 2 packets of biscuit. The shopkeeper wiped and wrapped all the items in a large paper bag. Mother told the children that nowadays, instead of polythene bags, the paper bags are being used all over the world. Polythene bags block the sewerage pipes. When the drains are choked, the dirty water spills all over. One last thing before we go home, said mother, stopping before a poultry shop. How much for the eggs?
30 rupees for a dozen. How much, madam? 2 dozen. Here you are, said the shopkeeper. Do you have chicken? Inquired, inquired mother. Love or dressed? Live or Live or dressed? dressed? Live or dressed? Dressed, how much for a kilo? 90 rupees. Is it fresh? Yes, madam, we keep it in the freezer. Give me 1 kilo, please. That will do for today, said mother, coming out for the market. Let's go home now. I enjoyed shopping, said Ajmal, entering the house. Next Sunday we shall go again. No, not next Sunday. Next month at 11 o'clock, children. Let's get busy. Ajmal, you polish your own and Najma's shoes. Najma, you iron the cloth while I go to the kitchen and start cooking. ओके अब यहाँ पे जो है वो फ्रूट्स खरीदने के बाद गए थे ग्रोसर्स की शॉप पे। ग्रोसर्स को बेसिकली कहते हैं जहाँ से आपको मसाले वगैरह मिलते हैं। पंसारी की दुकान कहते हैं उर्दू में, ठीक है, जहाँ से आपको हर तरीके के मसाले और क्या करना चाहिए सारी चीजें वहीं से मिल जाती हैं, ठीक है। तो वहां जाके वो क्या कहती हैं, प्लीज गिव मी 1 किलो ऑफ सॉल्ट, a quarter of red chilies, a quarter मतलब आधे का भी आधा, ठीक है, a quarter of black pepper and other spices, 2 cartons of soap flakes, soap flakes क्या सरफ को कहते हैं, ठीक है, 3 bars of washing soap, अब सरफ अलग लिया उन्होंने, वॉशिंग सोप जो होता है बार के उसमें आता है वो अलग है, 4 cakes of toilet soap, अब सोप खरीदने का उन्होंने क्या एक वर्ड यूज किया, केक, जो नॉर्मली हम कहते हैं ना बार, उन्होंने केक बोला, ठीक है। किलो बैग ऑफ पॉरेज, पॉरेज कहते हैं दलिए को, a jar of honey, 1 bottle each of tomato sauce and vinegar, vinegar सिरका, and 2 packets of biscuits. The shopkeeper weighed मतलब वजन उसने किया और सारी चीजें उसने रैप करके उन्हें दे दी एक बड़े से पॉलिथीन बैग में, पॉलिथीन मतलब प्लास्टिक के बैग जो हमारे पास है। उस पे जो है मदर ने क्या कहा, मदर टोल्ड चिल्ड्रन दैट नाउअडेज इंस्टेड ऑफ पॉलिथीन बैग्स द पेपर बैग्स आर बीइंग यूज्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड। Polythene bags block the sewerage pipes. When the drains are choked, the dirty water spills all over. अच्छा, उन्होंने कहा कि अब पूरी दुनिया में प्लास्टिक के बैग्स की जगह पेपर के बैग यूज होना स्टार्ट हो गए। क्यों? क्योंकि जो प्लास्टिक के बैग होते हैं जब लोग उन्हें बाहर फेंक देते हैं तो वो गटर में जाके लाइनों में अटक जाते हैं, चोक हो जाते हैं, फंस जाते हैं और उसकी वजह से गंदा पानी जो है वो गटर से बाहर आ जाता है और हर जगह फैल जाता है। वन लास्ट थिंग बिफोर वी गो होम, वहां वो कहाँ जाते हैं, एग्स लेने के लिए एट अ पोल्ट्री शॉप, ठीक है, मीट लेने के लिए बुचर के पास गए और सामान मतलब लाइक स्पाइसेस लेने के लिए वो ग्रोसर्स के पास गए और सब्जियों और फ्रूट्स खरीदने के लिए वो अलग शॉप पे गए और उसके बाद वो एग्स लेने के लिए पोल्ट्री शॉप पे गए। पोल्ट्री की शॉप जो होती है वहाँ डेयरी के सारे प्रोडक्ट्स मिलते हैं, जैसे एग्स, दही, आपका योगर्ट हो गया, आपका मिल्क हो गया और मतलब चिकन वगैरह, ये सारी चीजें भी वहीं से मिलती है, ठीक है। अब वहां जाके उन्होंने कितने किलो मतलब डजन एग्स लिए, 30 रुपीज फॉर डजन और 2 डजन, डजन मतलब दर्जन, एक दर्जन में 12 अंडे आते हैं, ठीक है। उसके बाद वो चिकन की शॉप पे गई, वहां जाके उन्होंने चिकन पूछी तो शॉपकीपर ने पूछा कि लाइव और ड्रेस, लाइव का मतलब जिंदा मुर्गी चाहिए या कटी हुई मुर्गी चाहिए, तो उन्होंने कहा मुझे कटी हुई मुर्गी चाहिए और 1 किलो की उन्होंने मुर्गी ली, दैट वाज फॉर 90 रुपीज। उसके बाद वो लोग घर गए और घर जाके उन्होंने क्या कहा बच्चों ने कि हम नेक्स्ट संडे फिर से शॉपिंग पे जाएंगे, बिकॉज दे वर एक्साइटेड और उनको बहुत मजा आया शॉपिंग करते में। तो उनकी मदर ने कहा नो नॉट नेक्स्ट संडे बट नेक्स्ट मंथ, और उन्होंने कहा कि अब 11 बज रहे हैं, तो अजमल को कहा गो पॉलिश योर ओन शूज और नजमा के शूज फॉर स्कूल, और नजमा को कहा कि तुम जाओ और दोनों के कपड़े सीख लो जब तक मैं जाके खाना बनाती हूँ। Why did the mother ask Najma and Ajmal to go with her for shopping? उनकी मदर अपने बच्चों को साथ लेके शॉपिंग पे क्यों जा रही थी? क्योंकि उनके फादर टूर पे गए हुए थे आउट ऑफ सिटी। How much fare did the taxi driver demanded? टैक्सी ड्राइवर ने डिमांड की थी 25 रुपीज। और मदर ने कितने दिए थे? 15 रुपीज। अच्छा, where did mother and children go first for shopping? सबसे पहले वो कौन सी दुकान पे गए थे? मटन मार्केट। और वहाँ मटन। मटन शॉप, हाँ, मटन ही बीफ शॉप। लेट गो द फर्स्ट उधर
बीफ खरीदा था ना उन्होंने। मटन मार्केट में गए थे ना सबसे पहले। मीट मार्केट थी वो, मटन मार्केट नहीं थी, मीट मार्केट थी। नो टीचर, तो देखें इनकी मदर कह रही है लेट्स गो टू दी मटन मार्केट फर्स्ट। एक मिनट, लेट मी सी। ओके, ठीक है ठीक है, आई वाज रॉन्ग। व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन बीफ एंड मटन? मटन होता है गोट का और शीप का, बी और मीट काउस का और उसका। व्हाट डिड मदर बाय एट द बुचर्स शॉप? मदर ने 110 रुपीज का वो 1 किलो माइंस मीट लिया था मिंस्ड मीट और किसको लेग पीस, कहते हैं? कीमा वाले गोश्त को। अच्छा, वेयर डिड मदर गो आफ्टर मेकिंग परचेज एट द बुचर्स? वेजिटेबल मार्केट अच्छा, हाउ एंड डिड फ्रूट मदर मार्केट। बाय बनानास एंड एप्पल्स? बनाना और एप्पल खरीदने का एक अलग तरीका था, किस तरीके से देते हैं वो? फ्रेंड उन्होंने बनानास लिए थे और एप्पल 24 रुपीज किलो लिए थे। सही। व्हाट डिड मदर बाय लास्ट ऑफ ऑल? सबसे आखिर में क्या खरीदा था? एग। नहीं, चिकन। नो मैम। एग्स तो डजन लिए थे। एग्स उन्होंने लिए थे 2 डजन। उसके बाद वो चिकन की शॉप पे गई थी जहाँ उन्होंने लाइव या ड्रेस उसका पूछा था। दोबारा से देखो, जी मैम। ठीक है? जी जी। ओके। हाउ फार इज द मार्केट फ्रॉम द हाउस ऑफ नजमा एंड अजमल? उनके घर से कितनी दूर पे, कितनी फासले पे थी मार्केट? 2 किलोमीटर। सही। What did mother ask the children to do when they reached back home? मदर ने कहा था अजमल को कि अब तुम जाओ अपने और नजमा के शूज पॉलिश करो। नजमा को कहा था कि तुम आयरन करो क्लोथ्स पे, और मैं जा रहे हैं किचन में कुकिंग करने। सही, ठीक है। समझ में आ गया चैप्टर? कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई है? नो टीचर। ओके, ठीक है। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।